profit. Main objective of every business house is to promote profit. So in order to promote profit, in order to promote sale, what tools a marketer uses, the combination of all those tools we call, yes, what we call it promotion mix, right? So here is promotion mix. Then we started the definition of advertisement, advertising. So advertising is perhaps most commonly used tool of promotion. इसके बारे में one thing you have to keep in your mind, that is it is impersonal. So let me write it here. It is impersonal form of communication. Impersonal is the main characteristic of your advertisement. Impersonal type of or form of communication, right? So this thing you have to keep in your mind. Then we have to start its features. Only 3 features are there, students. First is paid form. Who is going to pay for it? That is what? Sponsor. That is what? Seller is paying for it. Advertisement is a paid form of communication. You watch the matches on television. You go to different exhibitions. You might have seen so many hoardings, so many boards who are advertising the things or the product. So that are being paid by the marketer. So advertising is a paid form of communication, that is the sponsor has to bear the cost of communicating with prospects. What is the meaning of prospects? Who are our prospective buyers? We are just trying our best to convince them. We are just trying our best to influence them so that their buying decision we can change, so that they can come forward and they can buy our product. So this is what we call paid form. Impersonality, मैंने पहले से लिख के आपको बताया है, impersonal form of communication, and second is paid form of communication. Somebody has to pay. एडवर्टाइजमेंट तैयार करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आप हायर करते हो, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की आप हेल्प लेते हो. यू गेट योर एडवर्टाइजमेंट डन, देन यू टेलीकास्ट इट. तो जहां पे टेलीकास्ट कर रहे हो, जहां पे प्रिंट मीडिया में आप भेज रहे हो एडवर्टाइजमेंट, यू हैव टू पे फॉर इट. आपको पता है ना, एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करनी पड़ती है. सो इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. देन हमारे मार्केटर मीन सेलर का प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ कोई फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता. So that's why we call it, there is no direct face-to-face contact between the prospect means prospective buyers who can buy my product, but actually now they are not my actual buyer. That's why he is calling it prospect buyers, ठीक है, और prospective buyers. It is therefore referred to as impersonal method of promotion. It is monologue, it's not a dialogue. Monologue means one party is speaking and speaking, and it's not sure other party is watching or listening or not. राइट मैं बोलती हूँ ना, जब टीवी में ऐड आती है, यूज्ड टू चेंज द चैनल. सो इट इज अ मोनोलॉग. हाउ कैन कंपनी कम टू नो द डायरेक्ट रिएक्शन? तो फीडबैक की पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, फीडबैक नहीं पता चलता, लेकिन ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी ने ये ऐड दी है. लाइक व्हेनेवर टोयोटा की गाड़ियों की ऐड आती है, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई. होंडा की गाड़ियों की ऐड आती है, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर. टाटा मोटर्स की ऐड आती है, आई कैन इजीली आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर्स. तो एडवर्टाइजमेंट को देख के या एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के न्यूज़पेपर में वी कैन इजीली कम टू नो दैट हु आर द स्पॉन्सर्स. Advertising is undertaken by some identified individual or companies who make the advertising happen and also bear the cost. हमें पता चल जाता है कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट की ऐड है. So here comes an end for the features of advertising. We have 3 features of advertising, right? Then we have merits. You tell the merits. Okay, let's participate in this discussion. You tell the merits. Is there any merit from your side? हरनूर सिंह, हरनूर सिंह अनम्यूट करिए. हरनूर, it's your turn now. Unmute yourself. हरनूर, are you there? अनम्यूट करो. अपूर्व, आप अनम्यूट करो बेटा जी. Unmuted? Yes, ma'am. Good. Apurv, can you tell me any advantage of advertising, like from consumer point of view? आप बताओ, आपको क्या फायदे हैं एडवर्टाइजमेंट? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में डिस्कस करते हैं. You tell, as a consumer, do you get any benefit from advertising? I'll get to know better about the product. जर्नल सा क्वेश्चन है. Yes, I'll get to know better about the product. We what? We get what? Speak loudly. I am not able to hear you. Yes, mic करो आगे. Good. Through advertisement,
And I can judge the product better. Okay, you can judge the product better. This what you spoke? Yes, ma'am. Okay, done. Yes, you can get the knowledge about the product. राइट, घर बैठे बैठाए आपको पता चल जाता है मार्केट में क्या कुछ नया आया है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. यस, गौरव रोड मैम, people came to know about new products, very good. Rasika wrote awareness about the product, very good. Like जब तक ऐड नहीं आती, हाउ कुड आई कम टू नो कि मार्केट में कौन सा मॉडल चल रहा है, आईफोन का कौन सा, रेडमी का मॉडल चल रहा है. सो दिस इज ओनली ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट दैट अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड बाय द कंपनीज अमंग द पब्लिक. So Lakshit wrote gets knowledge about the product of the company. Pratham Sharma wrote know about the latest product of the company. Very good. Suhani wrote attracts buyer. Yes, good answers. Very good. So your participation always motivate me. Nowadays we are following a reverse procedure. When you used to sit in our classrooms, we used to motivate you, but now you are sitting at home and we are teaching you. When you answer our questions, really it motivates us, right? So मेरे को लगता है कि yes, my kids, they are listening to me, they are aware of what I am teaching to them. Done. It's good on your part. You answered the question. Okay, let me tell you what in your book he wrote. First he wrote what it is mass communication. ध्यान से सुनना meaning. 1 करोड़ की एड बनी, 10 करोड़ लोगों तक वो पहुंची. 1 करोड़ की एड बनी, 10 करोड़ लोगों तक वो पहुंची, तो 10 पैसे पर पर्सन ही तो कॉस्ट हुई. ठीक है, अगर 1 करोड़ खर्च करके आप 1 करोड़ तक पहुंचाते हो वो एड, तो 1 रुपी पर पर्सन उसकी कॉस्ट हुई. एडवर्टाइजमेंट हैज ऑलवेज अ वाइड रेंज. You spent less, but the range or the reach is quite large. It is what mass reach. ठीक है, इंडिया में एड बनी है, सोनी टेलीविजन अमेरिका में भी चल रहा है, कनाडा में भी चल रहा है, तो वहां पे भी वो एड पहुंची. इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड रीच हो जाती है एडवर्टाइजमेंट की. सिमिलरली पंजाब केसरी में कोई ऐड आई न्यूज़पेपर में, तो पूरे पंजाब में वो जा रहा है, इवन हरियाणा में भी वो न्यूज़पेपर जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे भी दूसरी स्टेट में भी उस प्रोडक्ट की ऐड गई. So this is what we call mass reach. This is what we call wider reach, right? Advertisement is a medium through which a large number of people can be reached over a vast geographical area. For example, an advertisement message placed in a national daily reaches, national daily मतलब daily newspaper, reaches lakhs of its subscribers. जिन्होंने भी वो न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया हुआ है उन तक वो हमारी एड, वो हमारा मैसेज पहुंच जाता है. सिमिलरली जैसे वैक्सीनेशन का मैसेज है, पंजाब गवर्नमेंट ने अपना फतेह मिशन चलाया है, तो हर पंजाब के हर कॉर्नर में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उस न्यूज़पेपर के उन तक ये पहुंच जाता है. और आजकल तो वैसे भी ई न्यूज़पेपर का ट्रेंड है, so online also you can read the newspapers and you can get the same message. This is what we call advertisement has mass reach. Enhancing customer satisfaction and confidence. मैं हमेशा ये सोचती हूँ इस कंपनी के प्रोडक्ट की एड आ रही है, कंपनी बढ़िया ही होगी, कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट ही बनाती होगी, तभी तो करोड़ों रुपए वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रही है. So whenever you watch the advertisement or you read the advertisement of any of your favorite product in the market, or whatever you are using, you are habitual of using that product, आप उसके परमानेंट यूजर हो प्रोडक्ट के, तो यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे प्रोडक्ट की एड आ रही है, तो डेफिनेटली आई एम इन अ पोजीशन टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट और आई हैव चूजन अ राइट प्रोडक्ट. तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहती है अगर जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसकी आप कहीं पे ऐड देख लेते हैं या ऐड पढ़ लेते हैं या आते जाते कोई एडवर्टाइजमेंट का उसका होर्डिंग या बोर्ड देख लेते हैं. सो दैट गिव्स यू अ सेटिस्फेक्शन. व्हाट एक्सप्लेनेशन ही रोट. Advertisement creates a confidence among the prospective buyers. Yes, he is writing from another point of view, prospective. I am thinking to buy a product, still I haven't purchased. But when I watch the advertisement, मेरे friend ने मेरे को बताया कि this product is good, right? And after few days, I watched the advertisement on the TV. And on the television, I just watched and I viewed the basic features of that particular product. So that gives me a confidence. I get ready to buy that product. I got determined to buy that product क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ने इतना ज्यादा मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दिया. So assured about the product quality, जब आप उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हो तो आपको लगता है कि yes, प्रोडक्ट अच्छी किस्म का ही होगा, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आमतौर पे अच्छे ही होते हैं. दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस और satisfaction you get. Expressiveness. This benefit is from the viewpoint of marketer or from the viewpoint of the seller. आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं what you want to tell to your viewers.
So you have so many techniques. You have animation, you have graphics. अगर पेपर में है तो पेपर प्रिंटिंग में आप डिफरेंट तरह के मोड्स यूज करके एडवर्टाइज कर सकते हैं. Like one thing always comes to my mind when we watch this dairy milk during Diwali season. So they make a different type of act. ठीक है, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन है या किसी वॉचमैन को गिफ्ट कर दिया उस लोकेलिटी के लोगों ने डेयरी मिल्क का डिब्बा, या किसी ओल्ड एजेड पर्सन को गिफ्ट कर दिया डेयरी मिल्क का डिब्बा. दिस इज व्हाट सेलिब्रेशन. और उनकी टैगलाइन भी क्या है? सेलिब्रेशन. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में वॉट एवर मैसेज यू वांट टू कन्वे टू अदर्स, ठीक, सो दैट यू कैन बी इन अ पोजिशन टू एक्सप्रेस वेरी वेल. दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सप्रेसिवनेस. तो आप अपना मनचाहा मैसेज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं. इकोनॉमी तो है ही, 10 करोड़ लगा के 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा तो कितना कम पैसा लगा, सिर्फ 10 पैसे पर पर्सन. ठीक है, 10 करोड़ लगा के 50 करोड़ लोगों तक पहुंचा पैसा तो 5 पैसे पर पर्सन. क्योंकि कम पैसे लगा के रीच क्या रहती है, इसकी वाइडर रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं इकोनॉमिकल. आगे जाके वो इसका ड्रॉबैक भी बोलेगा कि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सामान की कॉस्ट बढ़ जाती है. एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बायर्स को ही बेयर करना पड़ता है बेसिकली, बिकॉज जिस प्रोडक्ट की एड आती है वो आमतौर पे महंगा होता है, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी उसके प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड करनी होती है. सो दिस विल बिकम द ड्रॉबैक और लिमिटेशन आफ्टरवर्ड्स, पर फिलहाल आपने याद रखना इकोनॉमिकल. You spend little but you get a maximum benefit. So advertising is a very economical mode of communication if the large number of people are to be reached. अगर करोड़ों खर्च करके आप 10 करोड़ या 100 करोड़ लोगों तक अपनी एड को पहुंचा रहे हैं तो डेफिनेटली a minor amount, a very minimum amount you are spending on it. Because of its wide reach, the overall cost of advertisement gets spread over the numerous communication links established. As a result, per unit cost of the advertisement is very little or very low. Now come to the limitations of advertisement. Less forceful. How less forceful? Because there is no face-to-face contact. You are sitting at your home, you are watching the TV, you are reading the newspaper, and you just turn the page of advertisement. आप उस पेज को पढ़ते ही नहीं हो. You skip the page of advertisement and you skip that channel when any advertisement comes on that channel. बहुत कम advertisements हैं जो आपको bind करके रखती हैं, जिनको देखना आप पसंद करते हैं. Right, so in that context he says it is a limitation which we call less forceful. Convincing power नहीं रहती advertisement में, क्योंकि nobody comes into the face to face contact of each other. It is always a monologue. dialogue नहीं होता. एक पार्टी बोले जा रही है, दूसरी सुन रही भी रही है कि नहीं ये हमें नहीं पता चलता. अगला पॉइंट आ गया, lack of feedback. How can you come to know that you spent a lot on advertisement? What is the reaction of the viewers आफ्टर वॉचिंग दैट एडवर्टाइजमेंट? उस एडवर्टाइजमेंट को देख के या पढ़ के हमारे व्यूअर्स का क्या रिएक्शन था वो हमें नहीं पता चलता. ठीक है, घर बैठे बैठे मैं कहती हूँ क्या बकवास ऐड बनाई है, कोई रिलेशन ही नहीं है. इट मीन्स कि मेरा फीडबैक कंपनी तक तो नहीं पहुंचा, मैंने सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने साथ ही बात करके निकाल ली. तो ये रिएक्शन कंपनी तक नहीं पहुंचता, इसलिए लैक ऑफ फीडबैक है भाई. इनफ्लेक्सिबिलिटी. पर इंटरनेट में जो ऐड आती है ना, मैंने थोड़े दिन पहले ही एनालिसिस किया, लाइक द पॉप अप एंड एड्स आर ब्लिंकिंग ऑन माय स्क्रीन एंड आई यूज्ड टू पुट द क्रॉस, और वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है व्हाई यू आर नॉट लाइकिंग इट. ठीक है, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज. मैं कई बार ये कर देती हूँ, 3 ऑप्शन वो देता है, इट्स नॉट रिलेटेड विद मी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो कहता है कि यस वी विल ट्राई नॉट टू शो दिस एड अगेन टू यू. ठीक है, तो इस तरह से ये फीडबैक मिल जाता है ऑनलाइन एड्स के ऊपर. लेकिन तो प्रिंटेड मीडिया में ऐड आती है या ऑडियो विजुअल मीडिया में ऐड आती है, वो उसमें फीडबैक नहीं मिल पाता हमारे मार्केटर्स और सेलर्स को. इनफ्लेक्सिबिलिटी. Once you make the ad, the same ad you are presented in front of your any type of viewer. Either a kid is watching that ad, or a youngster is watching that ad, or an old aged person is watching that ad. The content of the ad remains same. But when I will be teaching you a personal selling, my seller used to change his tone. अगर कोई जेंटलमैन उसके पास आता है तो वो इंग्लिश में बात करता है. अगर कोई ओल्ड एजेड पर्सन उसके पास आता है who is not in a position to understand the English language, तो उसमें उसके साथ पंजाबी और हिंदी में बात करता है. It means कि he used to change his tone. लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. लो इफेक्टिवनेस. As the volume of advertisement is getting more and more expanded, बहुत सारी ढेरों ऐड आती हैं सेम ही प्रोडक्ट की.
इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मेक एडवर्टाइजिंग मैसेज हर्ड बाय द टारगेट प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि ढेरों ऐड रहती हैं। पहले कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स की ऐड होती थी, अब ढेरों ऐड आती हैं, तो हमारे मार्केटर्स को पता ही नहीं चलता कि हमारी इन ऐड का कोई असर भी हो रहा है कि नहीं। दिस इज अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऐड। जब किसी चीज की भरमार हो जाती है तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करते, राइट। ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, ये हमारे सिलेबस में से लास्ट टू लास्ट ईयर भी डिलीट था, अभी भी मैं ये मान रही हूँ कि डिलीट होगा, बट लेट द सिलेबस कम, सो आई एम लीविंग दिस टॉपिक इन बिटवीन। ऑब्जेक्शंस अभी छोड़ते हैं, सिलेबस में से देखेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड टूल ऑफ प्रमोशन मिक्स which we call personal selling, right? Personal selling means your man is there at the shop or showroom and he is going to attend you when you visit that showroom or that shop. He or she asks from you, how can I help you, which type of product do you want, you tell your priorities, you tell your budget, you tell your range, and then ultimately he or she starts showing the products to you. This is what we call personal selling. हमारा बायर और सेलर जब फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में आते हैं, मतलब जब आप खुद विजिट करके सामान को खरीदते हैं, एंड द सेलर इज देयर टू अटेंड यू, सेलर इज देयर टू फुलफिल योर क्वेरीज, seller is there to bargain with you, that type of selling we call personal selling. और यहाँ पे oral presentation of message है in the form of conversation with one or more prospective consumers. ठीक है जी, या तो वो एक के साथ बात करता है, या हो सकता है उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दो बंदे खड़े हैं, तो मोर देन वन पर्सन के साथ भी वो एट अ सिंगल इंस्टेंस वो उससे बातचीत करता है, उन्हें कन्विंस करता है सामान खरीदने को। आमतौर पे बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने सेल पर्सोनर और सेल्समैन अपॉइंट किए होते हैं जो कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। तो पर्सनल सेलिंग के फीचर्स भी हैं, जैसे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के थे। अगर वो इम्पर्सनल फॉर्म थी तो ये कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ पे डायलॉग हो रहा है, आप बोलते हो मेरे को ये चाहिए, वो कहता है यस सर दिस इज अवेलेबल विद अस, लेकिन इसकी डिफरेंट रेंज है, मैं आपको सारी रेंज दिखा देता हूँ, यू डिसाइड कि आपको कौन सा खरीदना है, राइट। सो इन पर्सनल सेलिंग अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग, वहां पे मोनोलॉग था, एक ही पार्टी बोलती थी, दूसरी पार्टी का कोई रिएक्शन उस तक नहीं पहुंचता था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डायलॉग takes place that involves an interaction or interactive relationship between seller and buyer. कई बार इतना अच्छा रिलेशन बन जाता है, हमें वो सेलर की बात करने का ढंग बहुत पसंद आता है, हमें लगता है कि यस ही इज अ जेन्युइन मैन, इसने ये बंदा मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकता, इसने जो जो बताया है यस वही वही फीचर मेरे को प्रोडक्ट में देखने को मिला है, इसने मेरे साथ कोई ज्यादा चीटिंग नहीं करी, इसने मेरे को अच्छा प्रोडक्ट ही दिया है, इसने ज्यादा रेट भी नहीं मेरे को लगाया, अ जेन्युइन और रीजनेबल प्राइस ही चार्ज। So such type of interaction always build a good relationship between buyer and seller, and in future also we want to visit to his or her showroom or shop, क्योंकि हमें उसका बातचीत करने का ढंग, उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगला मैंने बोल ही दिया, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन बन जाता है, वो हमें कहता है कि यस सर और मैम इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स ऑल्सो, अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि हमारे पास ये सामान अवेलेबल है। समटाइम्स ही और शी गिव्स अस हिज विजिटिंग कार्ड, वो हमें अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देता है, कहता है ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको कभी दोबारा फिर से सामान चाहिए हो यू जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल बी डिलीवरिंग द थिंग्स एट योर प्लेस। So such type of good relationships always made in what personal selling, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे सेलर को पता ही नहीं है कि उसकी एड कौन कौन देख रहा है और कौन कौन मिस कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने पहले से ही डिस्कस कर लिया हुआ है, जो भी कस्टमर उसके पास आता है उसकी भाषा में वो उसके साथ बात करता है, जैसा वो बोलना और सुनना पसंद करता है वो वैसा ही उसके साथ बात करता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर। डायरेक्ट फीडबैक, तो हमारे ये जो सेल्समैन होते हैं ना, दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, वो बंदे का फेस ही रीड कर लेते हैं उसको ये चीज पसंद आ रही है कि नहीं, वो पूछ भी लेते हैं, खैर मैम इज इट ओके, इज इट फिटिंग इन योर रेंज, sir may I show you something other, if you are not feeling good with this, you are not satisfied with this fabric or this product, I do have more of the variety, ठीक है, तो I am showing you the another one. So this is what we call direct feedback, yes or no से उससे पता चल जाता है कि हमें कैसा सामान चाहिए। Before proceeding to the next merit, let me read this definition for you. Some people think selling is same as talking. Do you agree?
जिस बंदे की अच्छी स्पीकिंग स्किल है ना, वो अच्छा सेल्समैन बन जाता है। कहता है, कई लोग कहते हैं मतलब सामान को बेचना वैसा ही है जैसे आप बातचीत करते हैं, बट द मोस्ट इफेक्टिव सेल्समैन नो दैट लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर जॉब। आपने सिर्फ बोलने ही नहीं जाना, आपने दूसरे पार्टी को सुनना भी है। जो आपसे सामान खरीदने आया वो क्या चाहता है, आप पूछो बीच में से, मैम ये आपकी रेंज तक है कि मैं इससे ऊपर वाली रेंज दिखाऊं, ठीक है, तो आपने उनकी बात सुननी भी है। तो लिसनिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेलिंग जॉब। यू डोंट क्लोज अ सेल, एक बार सामान बेच के आप अपना सेल वाला रिलेशन खत्म नहीं करते। यू ओपन अ रिलेशनशिप इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल एंटरप्राइज। आप उन्हें इतना कन्विंस और इतना सेटिस्फाइड करके भेजते हो कि वो बार बार आपसे ही सामान खरीदने आते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग एज पर फ्यू ऑथर्स। मिनिमम वेस्टेज, एडवर्टाइजमेंट में तो वेस्टेज है, दे आर प्रेजेंटिंग द एड एंड नोबडी इज वॉचिंग इट। दे कंसिडर कि 10 करोड़ लोगों तक मेरी एड पहुंच गई होगी, पर 50 लाख लोगों तक भी नहीं पहुंची। इट मींस कि देयर एफर्ट गॉट वेस्टेड। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं सेल्समैन होगा ना कि कस्टमर कोई खड़ा ही नहीं है तो वो बोले जा रहा है। अनलेस एंड अंटिल द कस्टमर इज नॉट कमिंग टू हिम और हर, इज नॉट अप्रोचिंग टू हिम और हर, ही विल नेवर स्पीक। इट मींस कि वहां पे आपके एफर्ट वेस्ट नहीं होते। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में एफर्ट वेस्ट होते हैं तो ये उसका भी ड्रॉबैक है, बट उसके ड्रॉबैक हमारे सिलेबस में नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट कवर्ड इट। रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, यू टेल पर्सनल सेलिंग की उसने बोले हैं एडवांटेज बिजनेसमैन को भी है और कस्टमर को भी है। नाउ अगेन इट्स योर टर्न, यू टेल व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू अ बिजनेसमैन। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। Yes, what are the advantages of personal selling? Bhavneet, you tell to a businessman. Bhavneet, unmute karo. Yes, ma'am. Anji, what are the advantages of personal selling to a businessman? मैम प्रोडक्ट्स मैम एक मतलब इंस्टेंटली सोल्ड हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। Okay, product क्योंकि sell हो डायरेक्ट जाएगा। कॉन्टैक्ट है। Yes, increase in sale we can write it, है ना? Any other advantage from your viewpoint? What else can be the advantage? हाँ Bhavneet, I am waiting from your side only. Yes, better communication, Rasika wrote, flexibility is there. Yes, good. Direct selling is there, helps to influence the buyer to buy the product, can get to know about the market demand and preferences. Yes, हमें बता देता है हमारा सेलर ही और सेल्समैन ही कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, राइट? So this can be the advantages. Got it? और देखते हैं effective promotional tool. Effective promotional tool. What it means? इफेक्टिव किस हिसाब से है? कम खर्चा करके आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है, जबकि हमारी एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होता था। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता था, आप खर्चा करे जा रहे हो लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंचा है हमें नहीं पता चलता था। लेकिन इट इज इफेक्टिव टूल विच हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग। आपके पास जो भी आता है आप उसे कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं, वो खरीद के ही जाता है। इट मीन्स कि हियर लाइज योर इफेक्टिवनेस, आपके एफर्ट वेस्ट नहीं होते। फ्लेक्सिबल टूल, जैसा बंदा आपकी शॉप को विजिट करता है आप उसकी भाषा में ही उसके साथ बात करते हो, आप उसकी टोन में ही उसके साथ बात करते हो, so in that way it is a flexible tool. Minimizes wastage of effort compared with other tools of promotion. The possibility of wastage of effort is minimum. How and why? Because whatever is desired, that much is only on your part and that much only you speak. This helps the business persons in bringing the economy in their effort. उनके effort बेकार नहीं जाते. Customer attention. There is an opportunity to detect the loss of customer attention. आपको उसके साथ बातचीत करके ही पता चल जाता है कि कस्टमर आपकी बात सुन रहा है कि नहीं, कस्टमर आपका सामान खरीदने में इंटरेस्टेड है कि नहीं. So you can come to know about the mind structure of your customer, about his reaction. You can come to know. पर्सनल सेलिंग में आपके डायरेक्ट रिलेशन बन जाते हैं कस्टमर्स के साथ, आप उन्हें इतना सेटिस्फाई करते हैं, दे फील हैप्पी when they establish a relationship with you. Relationship in what context? That is exchange relationship, that is buying and selling a relationship. पर्सनल रेपुटेशन अच्छी बन जाती है हमारे उन कस्टमर्स के साथ. रोल इन प्रोडक्शन स्टेज, जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है या कंपनी ने कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप उसके बारे में भी अपने कस्टमर्स को कन्विंस करते हो और उन्हें बोलते हो हमारे पास इसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, यू शुड ऑल्सो बाय इट. नया प्रोडक्ट है, कंपनी ने एडिशनल फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, तो आप ऐसी बातों में भी नए प्रोडक्ट के केस में भी अपने उन कस्टमर्स को कन्विंस कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग.
रेपर्ड हो गया, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो गया, लिंक विद कस्टमर्स भी तो सेम ही है, कुछ पॉइंट्स रिपीटेड है भाई. सेल पीपल प्ले 3 डिफरेंट रोल. सेल पीपल मीन सेल्स पर्सन या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. मेनली परसुएसिव, आप परसुएड करते हो बायर को वो सामान खरीदने में. आप उन्हें सर्विस रोल प्रोवाइड करते हो, यू सर्व देम बेटर. लाइक जब कोई आया, सर और मैम विल यू टेक समथिंग, मे आई सर्व यू वाटर, कॉफी, टी एटसेट्रा, तो यू सर्व देम वेल. एंड इंफॉर्मेटिव रोल, कुछ भी नया मार्केट में आया है या किसी प्रोडक्ट की कोई कंप्लेंट्स है मार्केट में, आप उनके बारे में भी उन्हें इन्फॉर्म करते हो. एंड देयर बाय लिंक अ बिजनेस फर्म टू इट्स कस्टमर. कस्टमर के साथ अच्छे लिंक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रोल विच यू कैन रेफर. What is persuasive role, service role and informative role. Now you tell what are the advantages of personal selling from customer's point of view. We being our customers, how get the benefit, how much benefits we get, helps in identifying our need. कई बार मैं घर से लेने कुछ और चाहती हूँ, लेकिन उस चीज के साथ मेरे को कुछ और भी पसंद आ जाता है. मीन्स उस शॉप को विजिट करके मेरे को लगता है कि दिस शुड ऑल्सो बी एट माई होम, राइट, क्योंकि उसने डिस्प्ले ऐसा किया होता है, उसके बोलने का ढंग ऐसा होता है, और वो खुद ब खुद मेरे को कुछ नई चीज दिखाता है कि मैम मार्केट में ये भी आया है, दिस ऑल्सो यू शुड ट्राई. सो बाय talking to him, by conversing to that person, I come to know yes कि this is also my need. कभी मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा भी मार्केट में होना चाहिए तो मेरी ये नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट. अगर मेरे को कोई टोस्टर बिना इलेक्ट्रिसिटी के मिलता है, लाइक या जूसर मेरे को बिना इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलने को मिलता है, तो आई जस्ट एक्नॉलेज माई नीड कि हाँ, जब लाइट चले जाती है तो मैं जूस नहीं बना पाती, मैं ग्राइंड नहीं कर पाती. तो आई समटाइम्स थॉट कि कुछ ऐसा होना चाहिए था जो लाइट के बिना चले, इलेक्ट्रिसिटी और पावर के बिना चले. सो वंस ही शो दैट थिंग कि ये बैटरी के साथ चलता है, आप इसे पहले चार्ज करके रख लेना. एंड आई सॉ सम ब्लेंडर लाइक दिस, ठीक है, शेकर मेरे को ऐसा मिला जो चार्ज हो जाता है, ठीक है. सो दैट सेटिस्फाइड माई नीड एंड आउटराइटली आई बॉट इट. सो दिस ओनली becomes possible with the help of good salesmanship, with the help of personal selling. उस बंदे ने मेरे को वो चीज दिखाई and I acknowledged my need, yes I need it. You got it? Then latest market information, वो नई चीजों के बारे में तो मेरे को knowledge देता ही है, so I update my knowledge with the help of conversing with that guy, with that person. Expert advice. कई बार वो जो अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, लाइक मेरे को एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मैं घर से सोच के गई थी 6 kg की खरीदनी है. 6 kg मीन्स कि उसका लोड उसमें 6 kg आ सकता है. बट आफ्टर कन्वर्सिंग विथ हिम ही कन्विंस्ड मी कि आपको 7.5 kg खरीदना चाहिए. वाई? क्योंकि कई बार अच्छे और क्विल्टेड बेड कवर्स होते हैं जिनका फ्लफीनेस ज्यादा होती है, तो आपके वो बेड कवर्स भी उसमें वॉश हो जाएंगे. सो आई गॉट कन्विंस्ड. वो मेरे को कई बार एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है कि हमें बिग साइज के साथ ही जाना चाहिए और रेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है. इंड्यूसेस कंज्यूमर, कंज्यूमर को कन्विंस करता है. Personal selling induces the customer to purchase the new product that satisfies their needs in a better way and thereby helps in improving their standard of living. कुछ नया दिखाता है, कुछ नया जब आप खरीद के लाते हो तो you feel proud कि yes, ये चीज मेरे पास है, मेरे फ्रेंड सर्कल ने अभी तक नहीं खरीदी, तो इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एनहांस होता है. So these are the benefits from the viewpoint of consumer, right? So this is what we call advantages of personal selling to businessman to customer. कल हम करेंगे what is the advantages and what are the points of importance of personal selling to the society. So community as a large or society at a large is also benefited from this personal selling. That we will start tomorrow. And now it's a time to join your another class. So that's why I'm going to end this meeting. आपकी कोई query है, within a minute you may ask. Any doubt, any query to any one of you can ask. Do you want to ask anything, any query, any doubt? No.